So let's start our topic. My topic is Ayurvedic perspective of Prameha and Madhumeha. But due to some other pathies also, I'm going to just give a quick review on Ayurveda. What is Ayurveda? Ayurveda, it forms by two words, Ayu plus Veda, which means knowledge of Ayu. Now, the utility of Ayurveda is Swasthasya Swastha Rakshanam Aturasya Vikara Prasamanam. That means in Ayurveda, we don't cure the patient, but the first aim of the Ayurveda is to maintain the health of the healthy person. Secondly, we are going to cure the patient which are diseased or which are suffering from any issues. Now, the Ayurveda Mool, that means our pure Ayurveda depends on some factors which is which are dosha dhatu, mala moolam, hi shariram. That means in Ayurveda there are doshas and dhatus and mala in the body which cause diseases if they are in imbalanced state. Now, doshas are those are vayum, pittam, kapasheti, Trayodosha Samasata. That means there are three doshas. Those are Vayu, Vata, Pitta, and Kapha. As per these three doshas, there are presence of Saptadhatus. Those are Rasa, Asrik, Mansa, Medo, Asti, Majja, Shukrani, Dhatu. These are the Saptadhatus which are present in the body and which are going if these are in imbalanced state or if they are obstructed, they are going to cause disease. And lastly, there are three malas. Those are Mutra Ashrik, Swedya, Chap, Api. That means there are Mutra Purish and Swedya which is going to imbalance. If overall the Ayurveda depends on these three factors only, doshas, dhatu, and mala. And if imbalance in in these doshas, dhatus, and mala, ultimately they are going to cause the diseases. Okay. Apart from that, in Ayurveda, there is a factor of Agni also and Ama, which are going to cause the problems. And later we will see further what we are seeing from Agni and Ama. Now, as we are going to start our topic, so first of all, the topic is Ayurvedic perspective of Prameha and Madhumeha. बहुत डाउट होता है लोगों में कि प्रमेह क्या है, मधुमेह क्या है. बेसिकली प्रमेह एज पर आचार्य सुश्रुत एंड चरक एक बहुत डिजीज का असाध्य डिजीज जिसमें बोला गया है महागदा में. एंड आचार्य सुश्रुत ने एंड चरक ने क्या बोला? प्रमेह डिजीज इज अ क्रॉनिक डिजीज एंड इट इज एज पर आचार्य चरक it is of three types. Those are Kaphaja Prameha, Pittaja Prameha and Vataja Prameha. इसी प्रमेह में से एक इसका टाइप है मधुमेह. तो मधुमेह कुछ अलग नहीं है. मधुमेह इज द टाइप ऑफ प्रमेह एंड इट इज अ वातज प्रमेह. तो हम अपने सेशन में आगे के सेशन में और क्लियर होते जाएंगे कि प्रमेह और मधुमेह में डिफरेंस क्या है. बेसिकली प्रमेह एक बड़ा चैप्टर है. उस चैप्टर के अंदर कफज प्रमेह भी है, पित्तज प्रमेह भी है और वातज प्रमेह भी है. तो वातज प्रमेह के अंदर हम पढ़ते हैं मधुमेह को. ओके. सो नेक्स्ट, आज के सेशन में टॉपिक्स जो मुझे देखना है, कवर करना है, देयर आर इंट्रोडक्शन, टाइप्स, causative factors, symptoms, and how the disease is going to be caused. So let's start our topic, Prameha. So as per Acharya Charak and Shushruta, Prameha, two words say that is pra means abundant and meha means excess large amount of urine. Now, इसको हम अगर माधव निदान में देखते हैं, वहां पे माधव निदान में रेफरेंस मिलता है प्राकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम वार वार व महति इति मूत्र त्यागम करोति यो अस्मिन् रोगे स प्रमेह. Prakarshane means repeated. Prabhuta means large amount. Varavar means frequent.
मेह मीन्स टर्बिड। नाउ अगर हम इस श्लोक को एज आचार्य के रेफरेंस में देखेंगे तो क्या मतलब है? प्रमेह इज अ सिंड्रोम which include large amount of urine associated with frequent micturition and turbidity of urine। अब जस्ट इमेजिन, ये चीज आचार्य ने 3000 साल पहले, आचार्य सुश्रुत और चरक का काल 1000 ऑफ बिफोर क्राइस्ट का एरा था। उस टाइम में इन लोगों ने बहुत क्लियर कट ये सिम्टम बेसिस पे प्रमेह को लिखा। क्या वो प्रमेह एक ऐसा टाइप है जिसमें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन एंड टर्बिडिटी हमें मिलती है। इसी को मॉडर्न एस्पेक्ट में क्या बोला? डायबिटीज। एंड व्हाट इज डायबिटीज? द टर्म डायबिटीज इज diabetes, which means one which pass through siphon। अब इसको अगर लिटरली मीनिंग में देखेंगे तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। इसी कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर को हम अपनी बॉडी में अगर अप्लाई कर लें तो नो डाउट हमारे ब्लैडर से जो यूरिन का पास थ्रू हो रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर। सो अगर हम डायबिटीज को समहाउ कोरिलेट करेंगे, फर्दर भी उसके सिम्टम्स के बिहाफ पे देखते हैं, तो डायबिटीज काफी हद तक हमारे प्रमेह को कोरिलेट करेगा। नो डाउट उसके फैक्टर्स भी, इवन जो लक्षण भी हमें दिखेंगे, सारी चीजें फर्दर हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। इसी को कैरी अगर करते हैं प्रमेह, प्रमेह को ही फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो उसी का एक टाइप मधुमेह है। एंड मधुमेह इज अ सब टाइप ऑफ प्रमेह। एंड ये किसके एनालॉगस हम मॉडर्न साइंस से बोल सकते हैं? इट इज वेरी सिमिलर विद डायबिटीज मेलाइटिस। अगर हम प्रमेह में मधुमेह को देखें तो मधु इज इंडिविजुअली मीन्स हनी एंड मेलाइटिस इज ऑल्सो इंडिविजुअली मीन्स हनी। दोनों को अगर हम मिला के मीन करेंगे तो ऑलमोस्ट प्रमेह या मधुमेह with diabetes mellitus means passing of large quantity of urine which is sweet in nature। so on that basis हम काफी कोरिलेट कर सकते हैं मधुमेह को किसके साथ? डायबिटीज मेलाइटिस के साथ। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर था प्रमेह एंड मधुमेह, जो एक बेसिक कंसेप्ट रहता है। प्रमेह एक बड़ा हेडिंग जिसके अंदर हम मधुमेह की स्टडी कर रहे हैं। प्रमेह इज अ डायबिटीज एंड मधुमेह को डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम्स के बेसिस पे हम फर्दर देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे देखना है दैट इज टाइप्स ऑफ प्रमेह। टाइप्स ऑफ प्रमेह की बात करें तो आचार्य चरक ने क्लियरली बोला है, इवन सुश्रुत ने भी बोला है, द्वय प्रमोहो भवत सहज अपत्य निमित्तश्च तत्र सहज मात्र पितृ बीज दोषकृत आहारज यो पथ्य निमित्तश्च। अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिसमें आचार्यों ने सिर्फ डाइट को एंड लाइफस्टाइल को ना बताते हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले आचार्यों ने हमें जेनेटिक लेवल तक के कंसेप्ट बताए हैं। एंड यहाँ पे प्रमेय जो हम देखते हैं इसमें सहज प्रकृति जेनेटिक है। क्या बोला? द्वय प्रमोह, प्रमेयज आर टू इन टाइप। पहला क्या है? सहज, एंड दूसरा क्या है? पथ्य निमित्तश्च। अब सहज के लिए सेकेंड लाइन बहुत क्लियरली आचार्य ने क्या बोली? मात्र पितृ बीज दोष कृत। दैट मीन्स सहज के अंदर वो सारे आते हैं जो इट मे बी मैटरनल साइड, इट मे बी पैटर्नल साइड, और बीज दोष जेनेटिक पूल से भी वो सारे फैक्टर्स जो आ रहे हैं, ये डायबिटिक के एक फैक्टर्स या हमारे प्रमेह का एक टाइप है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड टाइप इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? पथ्य निमित्तश्च। पथ्य निमित्तश्च मतलब वो पथ्य मत जो लाइफस्टाइल या जो आहार विहार हम ले रहे हैं, और उसी को उन्होंने फर्दर लिखा अहित आहार। मीन्स वो आहार जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं हमारे डायबिटीज को कॉज करता है। इसी के लिए आचार्य चरक ने फिर निदान स्थान में एक्सप्लेन किया, और उन्होंने आचार्य चरक ने क्या बोला? प्रमेय, टोटल प्रमेय 20 इन नंबर्स हैं। अब इन 20 नंबर्स को आचार्य चरक ने
फिर से तीन में क्लासिफाई किया और उन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दोषास के बेसिस पे क्लासिफाई किया। और उन क्लासिफिकेशन को उन्होंने कैसे किया कि यूरिन की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी निकल रही है उसका क्लासिफिकेशन किया। एंड क्या बोला उन्होंने, साध्य कफोत्तज दश पित्तज षट्याप न साध पवन चतुष्क। दैट मीन टोटल 20 तो प्रमेय है। अब इन 20 में ऑन द बेसिस ऑफ दोषा 10 प्रमेय कफज हैं। एंड ये कफज कैसे हैं, साध्य नेचर है, जो कि अब आगे हम देखते हैं कि वाई इट इज साध्य। नेक्स्ट सेकंड है पित्तज प्रमेय, जो कि 6 इन नंबर है। एंड द लास्ट वन इज ना असाध्य, मीन्स दोज आर unteachable, and that is 4 in numbers, and this is of Vataja Prameha. वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, जो कि आज के टाइम में हम बोलते क्या है मधुमेह के लिए, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या है, वातज प्रकार है एंड इज ऑफ असाध्य इन नेचर। इसी का क्लासिफिकेशन बेसिस पे अगर हम जाएं तो आचार्यों का क्लासिफिकेशन दो दोषों को लेके क्या है, Kafij Pramihas in 10 in number, Pittajas are 6 in number, and Vataja Pramihas are 4 in number. On the basis of etiological factors, जो कि मैंने पहले भी बताया, आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया था, सहज एंड अपथ्यज। सहज के लिए फिर वही फैक्टर्स से मैटरनल साइड मात्रज, पैटर्नल साइड एंड जेनेटिक। नेक्स्ट वन अपथ्यज में फिर से डाइबिट डाइट एंड लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल थी। थर्ड क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। इट मे बी स्थूल, स्थूल मीन्स ओबेसिटी से पर्सन सफर कर रहा है, या कृष दैट इज लीन पेशेंट है। एंड द लास्ट कैसा क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोसिस, कि हमें वो पेशेंट साध्य हम इसका ट्रीटमेंट करें। इट मीन बी कफज प्रमेह होगा तो डेफिनेटली इट मे बी साध्य, कपित्तज होगा तो याप है, बट इफ द पेशेंट इज मधुमेह दैट इज वातज प्रमेह, दैट इज असाध्य इन कंडीशन। ओके, सो इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ पे आचार्य चरक का क्लासिफिकेशन टोटल 20 इन नंबर्स में, कफजा दीज आर 10 in numbers, pittajas are 6 in numbers, and vataja prameyas are 4 in numbers. यहाँ पे देखने वाला है वातज प्रमेय, जो कि ओज में है। ओज इज नथिंग, हमारे सप्त धातु का जो एंड निकलता है सार भाग, वो बनाता है हमारा ओज। और जब हमारे ब्लैडर से सिर्फ यूरिन के साथ साथ ओज का भी निष्कासन मीन्स एक्सपलेशन होता रहता है, देन वो कॉज करता है ओजमेह, दैट इज मधुमेह। सो इसीलिए मधुमेह को बोला गया है इट इज अनट्रीटेबल। अब फर्दर इसी को कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं, एंड हमारे टॉपिक का थर्ड हेडिंग है दैट इज निदान ऑफ प्रमेह। निदान इज नथिंग, क्या क्या फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स, जो कि हमारे प्रमेह के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आज के टाइम में हम क्या ऐसा लाइफस्टाइल लें एंड क्या चीजों को अवॉइड करना है। इसके लिए भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ही आचार्य चरक ने बहुत ब्यूटीफुल एक श्लोक को कोट किया और उन्होंने क्या बताया, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनूपरस प्यासी नव अन्न पान गुण वैकृत च प्रमेह हेतु कफश्च सर्वम। दैट मीन्स आस्य सुखम, आस्य सुख means the one who is indulged with pleasant and sedentary lifestyle. Swapna Sukham, the one who is taking excessive sleep, and that too, the sleep is in the morning hours. Dadhini, the one who is taking curd and dietary products. Gramya Udok Anuprasa Pyasi. Gramya Udok Anuprasa means the fresh soup of meat of animals in gram domestic and aquatic, that too from the marshy land. Pyasi, that means dairy product. Nava Anna Pana,
Nava Annapana is nothing. Those are freshly harvested crops and drinks. Gudavekrit, jaggery products. तो अगर पेशेंट या कोई भी पर्सन अपनी लाइफस्टाइल में इन सारी चीजों को रेगुलर या एक अमाउंट से ज्यादा इनटेक कर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है उसके में कफ कृच्च सर्वम। दैट मीन्स कफ का बढ़ाव हो रहा है। अब कफ क्या है? जैसा कि हम मैंने शुरुआत में ही बोला, हमारे आयुर्वेद में तीन दोषाज हैं, वात पित्त कफ। सो कफ इज अ फैक्टर जो कि हमारे बॉडी को स्टाउट बनाता है एंड सारे लेजीनेस वाले फैक्टर्स को कॉज करता है। इंडिविजुअली ये बहुत शॉर्ट सेशन है, मुझे टॉपिक को भी कंप्लीट करना है, तो मैं कफ के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकती हूँ। बट कफ के लिए जो बोला जाता है, अमंग द सिक्स आहार षड रसास में से जो कि मेन फैक्टर है मधुर आम्ल लवण। सो मधुर आम्ल लवण को अगर कोई ज्यादा इंटेक कर रहा है, मीन वो मधुर चीजें ज्यादा खा रहा है, तो उसका कफ बढ़ जाएगा। आम्लता को भी ज्यादा इंटेक कर रहा है, देन भी उसका कफ बढ़ता है। लवण को भी ज्यादा इंटेक कर रहा है, तो these three रसास आर गोइंग टू इंक्रीज द कफ। सो ओवरऑल यही सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कफ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये आचार्य चरक ने बताया क्या, कि अगर कोई पर्सन अपनी फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट में कफ को इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली, तो नो डाउट उसका कफ तो इंक्रीज होगा और उसके में प्रमेह का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। एंड प्रमेह के लिए जो एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसके ऑल अराउंड प्रमेह डायबिटीज होता है, दैट इज कफजा आहार एंड विहार। तो कफजा आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा आचार्य सुश्रुत के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ नहीं, कंसेप्ट सुश्रुत का भी यही था कि पर्सन जो अपना कफजा आहार और विहार को मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं उनके में कफ की बढ़ोतरी हो रही है। अब उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं, आइए उसको भी देखते हैं। दिवा स्वप्न आव्याम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मध्य द्रव्य अन्नपान सेविनम पुरुषम जनियात प्रमेही भविष्यति। मीन्स उन्होंने सुश्रुत ने क्या बोला कि दिवा स्वप्न स्लीप तो ले रहा है, बट वो मॉर्निंग में भी स्लीप ले रहा है। आव्याम नो एक्सरसाइज, वो अपने डे टू लाइफ स्टाइल में आचार्यों ने बहुत क्लियरली ऋतुचर्य दिनचर्य इन सब चैप्टर्स में बताया है कि व्यायाम का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया भी है कि वो पर्सन जो व्यायाम पे नहीं करते हैं, अप्रसक्त लेजी लाइफ चला रहे हैं, शीत स्निग्ध प्रिय मीन कोल्ड एंड स्लाइमी मोर स्लाइमी फूड्स को इंटेक कर रहे हैं, मोर मधुर आहार विहार ले रहे हैं, मद्य का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, इवन अल्कोहल का एंड स्वीट का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, उन पुरुषों में दैट इंडिविजुअल पर्सन इज गोइंग टू सफर विथ प्रमेह भविष्यति। भविष्यति मीन्स क्या है कि एक सर्टेन लिमिट तक तो ठीक है, जब तक हमारी बॉडी में वात पित्त कफ बैलेंस स्टेट में है, इट इज नॉर्मलाइज समझता बता हुआ है। बट अगर वही चीज इंक्रीज हो रहा है, एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज होती है तो नो डाउट डिजीज तो कॉज ही होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि हमारी बॉडी में वात पित्त कफ एक इक्विलिब्रियम तो है, पर हमने अपने लाइफस्टाइल से मोर एंड मोर इनटेक करा है मधुर आम्ल लवण आहार का, डाइट भी नहीं फॉलो किया है, और उसके साथ साथ हम अपने एक्सरसाइजेस को, स्लीप पैटर्न्स को, स्ट्रेस को, इन सबको भी इन्वॉल्व करते रहे हैं, तो नो डाउट ये लेवल तो क्रॉस होगा। एंड जैसे ही कफ का लेवल क्रॉस होता है, द पर्सन इज गोइंग टू सफर विथ प्रमेह। और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा है भविष्यति, मीन एट प्रेजेंट तो सब कुछ सही रहेगा, बट इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू सफर विथ प्रमेह। इसी के बिहाफ में अगर ये चीज हम प्रमेह के लिए देख रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक भी मधुमेह का है। और मधुमेह में बात करें तो मधुमेह इज अ टाइप ऑफ प्रमेह।
अब प्रमेह का टाइप है, तो उस टाइम में आचार्यों ने तो बहुत क्लियरली प्रमेह के रिवॉल्विंग ही फैक्टर्स को संप्राप्ति को बताया। उन्होंने इंसुलिन को तो फिगर आउट नहीं किया, वहां पे लिखा भी हुआ है देयर इज नो फिगर अमंग द इंसुलिन, बट देयर आर द फैक्टर्स, जिसको आचार्यों ने बहुत ब्यूटीफुली कोट किया है। देयर आर कुलज व्याधि एंड बीज दोषस which are positive factors for प्रमेह। दैट मीन्स कुल, यहाँ पे कुल किसके लिए बोला गया है? वो जो जेनेटिकली फ्रॉम एंसेस्ट्रल हमारी जनरेशन तक में आता है, दोज आर कुलज व्याधि। अब इस कुलज व्याधि के लिए क्या हमारा फैक्टर है? मे बी मधुमेह। क्लियर? इसी को अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से डायबिटीज देखें, diabetes mellitus is characterized by hyperglycemia through deficiency of insulin। और यहाँ पे मॉडर्न क्या बोलता है? It is put among the endocrine and metabolic disorders। अब metabolic disorders है, यहाँ पे हम ये तो बोल दे रहे हैं metabolic disorders, बट metabolic disorders कॉज क्या है? उसको हम आगे किसी की संप्राप्ति में देखेंगे, क्या चीजें हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कॉज कर रही हैं। एज पर आचार्य चरक एंड सुश्रुत ने तो बहुत क्लियर बताया, हमारा कफज आहार विहार एंड हमारा ये कुलिक व्याधि एंड जेनेटिक पूल रिस्पॉन्सिबल है मधुमेह के लिए। अ ब्यूटिफुल कोरिलेशन बिटवीन आयुर्वेदिक सिम्टम विथ मॉडर्न डायबिटीज, हम इसको काफी अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं एंड अपने पैथी की ब्यूटी को देखेंगे कि आचार्यों ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले सारे सिम्टम्स वही बताए हैं जो आज की मॉडर्न पैथीज में मिल रहे हैं। क्या क्या उन्होंने बोला? मधुर मूत्रता, दैट इज स्वीट यूरिन पास, एंड वो उसी को हमने क्या बोला मॉडर्न में? ग्लाइकोसूरिया। अति मूत्र प्रवण मीन्स एक्सेसिव यूरिन एक्सपेल्शन, जिसको मॉडर्न में क्या बोल देते हैं? पॉलीयूरिया। इसके अलावा सिम्टम्स क्या दिखते हैं? अति तृष्णा, दैट इज, ये आयुर्वेद में अति तृष्णा वर्ड किसके लिए बोला जाता है? अति तृष्णा, दैट इज एक्सेसिव थर्स्ट, एंड इसी को क्या बोल दिया यहाँ पे? पॉलीडिप्सिया। अति शुद्रता, एक्सेसिव हंगर, दैट इज पॉलीफेजिया। कार्श्य दौर्बल्य, कार्श्य इज नथिंग, दैट इज वीकनेस, दौर्बल्य इज ऑल्सो वीकनेस। नाउ इसी को मॉडर्न में हम क्या बोल देते हैं? वेट लॉस इन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। गात्र शूल, बॉडी एक, इसी को न्यूरोपैथिकल हम पेन से कोरिलेट करते हैं। नेत्र रोग, आई प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट इज रेटिनोपैथी। एंड नेत्र रोग के लिए पर्टिकुलरली श्लोक्स भी आचार्य सुश्रुत ने कोट किया है कि अगर हमने प्रमेह को इनिशियली ट्रीट नहीं किया, देन इसके उपद्रवास में पीड़िका के बाद का कॉम्प्लिकेशन नेत्र रोग में आता है। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ण। वर्ण is nothing, it's a non-healing wounds, poor wound healing due to immunity and all factors. And last is pandu, anemia, low hemoglobin. These all are the symptoms which we can correlate the modern aspect with Ayurved aspect। इसी को सामान्य लक्षण में अगर हम देखें, तो हमारे आयुर्वेद में सामान्य लक्षण क्या बोला है? सामान्य लक्षणम तेषम प्रभुत विल मूत्रता, मीन्स क्या है? अविल मूत्रता, दैट इज टर्बिड यूरिनेशन, एंड प्रभुत मूत्रता इज excessive micturition। These all factors are explained in Prameha। Apart from these, there are the symptoms which are described as the primary symptom and secondary symptoms। So, the primary symptoms जो कि हमें मधुमेह में देखने को मिलता है, दैट इज मधुर मूत्रता, स्वीट यूरिन, अति स्वेद, एक्सेसिव स्वेटिंग, अति तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट, अति मूत्रता, एक्सेसिव यूरिनेशन। इसी प्राइमरी फैक्टर्स के बिहाफ पे ट्रीटेबल नहीं है, तो सेकेंडरी सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। दोज आर कार्श्य, एमिसेशन, दौर्बल्यता,
वीकनेस, आलस्य, लेथर्जिक कंडीशन, अरुचि, लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अति क्षुद्रता मीन उनका इनटेक खाने का भी कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट, उसी सिम्टम को, सेकेंडरी सिम्टम्स को ट्रीट नहीं किया गया तो वो टिश्यू लेवल तक, दैट इज धातु लेवल में भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और यहाँ पे भी आचार्यों ने धातु लेवल पे भी प्रॉपर श्लोक कोट करते हुए पर्टिकुलर उन टर्म्स को डिफाइन किया है। और वो टर्म्स क्या है? गात्रशूल। गात्रशूल इज नथिंग, इट्स अ बॉडी एक। एंड इसको अगर हम मॉडर्न से देखें तो गात्रशूल बॉडी एक किसको, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जाता है। दंत हर्ष, टूथ सेंसिटिविटी, नेत्र रोग, आई प्रॉब्लम, और इसको भी रेटिनोपैथी में हम टिश्यू लेवल पे जब इन्वॉल्वमेंट होता है। व्रण, व्रण इज नथिंग, इट्स अ वुंड, जो कि वुंड हीलिंग कैपेसिटी अपने आप ही कम हो जाती है। एंड लास्ट वन इज शोथजन्य सूक्ष्म वर्ण इन्फेक्शन। द पेशेंट इज, बिकॉज थर्ड टिश्यू लेवल पे जब इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो नो डाउट उसका ओज भी बाहर आ रहा है। एंड ओज नहीं है तो इम्यूनिटी को फाइट करने की उसकी टेंडेंसी भी रिड्यूस हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। नाउ अगर ये सारे, ये तो टिश्यू लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें बहुत दिखते हैं। द पेशेंट इज गोइंग टू suffer the complications is like Pandu, that is anemia, Manksha means person is going to very lean, pushed, skin disorder, and Shosho, Shosh is very emaciation। अगर हम इन सारे सिम्टम्स को कंपाइल करके देखते हैं तो नो डाउट हमारे आयुर्वेदिक पर्सपेक्ट में जो सिम्टम्स आचार्यों ने बोले हैं वही कहीं ना कहीं आज का मॉडर्न पैथी भी उन्हीं सिम्टम्स को उन्हीं लेवल्स पे एक्सप्लेन करता है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर हम अपने सेशन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, संप्राप्ति। व्हाट आर द संप्राप्ति, कि ये दोषक धातु इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। क्लियर? तो अभी तक तो सेशन में ये बहुत क्लियर था कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, कितने टाइप्स के हैं। एंड नो डाउट सिर्फ आहार विहार नहीं, हमारा जेनेटिक भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड द लास्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज संप्राप्ति, की ये डिजीज हमें हमारी बॉडी में आयुर्वेद पर्सपेक्ट से हम कैसे इसको समझेंगे कि हमने आहार विहार तो कफज ले लिया है, अब इस कफज आहार विहार के बेसिस पे कैसे प्रमेह होता है। सो एज पर आचार्य चरक, उन्होंने क्या बताया? टोटल प्रमेयस आर 20 इन नंबर्स, इन विच 10 आर वातज, 6 आर पित्तज एंड 4 आर कफज। इसी बिहाफ पे इन प्रमेयस के लिए क्या बोला गया? निदान आस्य सुखम, जिसमें कि वो पर्सन जो काफी सेडेंटरी। सो now I'm going to start. First, as per we have seen the introduction, the nidanas, the types. Now the session is going to proceed and we are going to see the samprapti, how the doshas and dhatus are involved to cause the prameha. As we have seen, Acharya Charak has described three types of prameha: vataja, pittaja, and kafaja prameha. And the mainly causative factors are kafaja prameha, the kafaja ahar vihar. Now, as we will see, if the person is taking more kafaja ahar vihar, how he is going to ultimately leads with prameha. So, etiology, if the person is taking more kafaja ahar vihar, what it is going to be? अगर कोई ज्यादा रेगुलर से इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो वात पित्त कफ बैलेंस्ड है, द पर्सन इज हेल्दी। इफ द पर्सन इज गोइंग टू टेक मोर कफज आहार विहार, क्या होगा? कफा उसका एग्रीवेट हो जाएगा। अब जो एग्रीवेटेड कफा है वो क्या है? अब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करने लगेगा, इट इज गोइंग टू स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। एंड नाउ स्प्रेड करने के साथ साथ अब वो क्या करेगा? बॉडी में मिक्स होना शुरू होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था
दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, हमारे शरीर में बेसिकली इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है? दोष का, धातुस का, मल का। यहाँ पे दोषास में वात पित्त कफ इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, तो नो डाउट देयर इज अ नॉर्मल कंडीशन। बट कफा यहाँ एग्रीवेट किया है, अब कफा एग्रीवेट किया है तो साथ साथ धातु को भी इफेक्ट करेगा। अब सप्त धातु में रसा आश्विक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सेवन धातुज में रस से रक्त की उत्पत्ति हुई, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, ऐसा ऐसा चलता रहता है। यहाँ पे कफ जो बढ़ गया था, ये क्या करेगा, ये बॉडी के मेद के साथ मिक्स करना शुरू होगा। बट यहाँ पे ये सिर्फ मेद के साथ ही क्यों मिक्स हो रहा है, एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये मेद के साथ इसलिए मिक्स होता है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मेद एंड कफा इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो सेम चीजें ही आपस में मिक्स हो पाती हैं। हम नमक और पानी को मिक्स कर सकते हैं शक्कर के साथ, इजिली विजिबल नहीं रहेगा। बट आप नमक को और बालू को मिक्स करना चाहोगे तो सैंड पार्टिकल्स तो दिखेंगे। एग्जैक्टली कफा और मेद की प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे कफ मेद के साथ मिक्स होने लगता है। और जब कफ मेद के साथ मिक्स हो जाता है तो लिक्विफाई होके धातुज के साथ किधर, यूरिन के थ्रू एक्सपेल होना शुरू होता है। जस्ट अ मिनट। So now the samprapti is like three doshas are suffered. If the three doshas में कफज या आहार विहार की वजह से कफा की इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ये क्लेदक कफा को इंक्रीज किया। अब क्लेद कफ क्या करेगा, हमारे बॉडी की अग्नि, अग्नि क्या थी, अग्नि जैसा नाम है वैसे ही अग्नि को आयुर्वेदिक टर्म में फायर से लिया जाता है, जो कि सफर कराता है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। एंड हमारी बॉडी में टोटल 13 टाइप्स की अग्नि प्रेजेंट है। दोज आर जठराग्नि, धात्व अग्नि एंड भूत अग्नि, जिसमें जठराग्नि का स्थान कहाँ पे है, आमाशय एंड पक्वाशय, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में जो अग्नि स्थान है दैट इज जठर अग्नि। अब ये जठर अग्नि क्या करेगा, आम कॉज करेगा। क्या किया, क्लेदक कफ तो बढ़ गया शरीर में, अब ये द्रवीभूत हो गया, लिक्विडिफाई हो गया, मिक्स हो गया है मेद के साथ। यहाँ पे ये जब कॉज किया तो इसने क्या किया, अग्नि को मंद कर दिया। जैसा हमारा नॉर्मल डाइट था, उस डाइट में डाइजेशन रेट कम हो गई। अब डाइजेशन रेट कम होगी तो क्या होगा, धातु का फिर फर्दर मेद के बाद मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इनका पोषण भी नहीं होगा, एंड क्लेद की उत्पत्ति होती जाएगी। अब ये क्लेद उत्पत्ति क्या करेगा, क्लेद ब्लैडर के आसपास है, तो ब्लैडर में क्या क्या मिक्स हो चुका है, कफ का मिक्सचर है, धातुस का मिक्सचर है, एंड ये विथ एक्सपेल हो जाएगा। क्लेद का विसर्जन किसके थ्रू हो जाएगा, मूत्र मार्ग के थ्रू हो जाएगा, एंड यही कॉज करता है हमारा प्रमेह। अब ये प्रमेह के लिए ये एक टाइप था जो कि कफज प्रमेह के लिए था। नेक्स्ट इसी रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो पित्तज प्रमेह, यहाँ पे पाचक पित्त, एक्चुअली वात के बाद, कफ के बाद पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे पाचक पित्त ये भी डाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी अग्नि मंद हो जाता है, एंड अग्नि मंद होने के साथ साथ जैसे ही अग्नि मंद होगा ना, तो आम का फॉर्मेशन होता है, एंड वो आम क्या करता है, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिससे नेक्स्ट धातुस का पोषण नहीं हो पाता है। और धातुस का पोषण नहीं होता है तो मेद जो कफ के साथ मिल गया है वो एक्सपेल आउट होने लगता है। यहाँ पे धातु विथ क्लेद, कफ का एक्सपल्शन हो जाता है,
जिसको बोलते हैं प्रमेह, दैट इज पित्तज प्रमेह। एंड उसी रेफरेंस में लास्ट वन इज वातज प्रमेह। यहाँ पे वाता का इन्वॉल्वमेंट होता है। वात अमंग द थ्री दोषास, वात दोष जब इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे भी अग्नि की दृष्टि तो होती ही है। इसके साथ साथ यहाँ वात का देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, प्रमेह का सेम एज इट इज चिकित्सा चलती है। क्या होता है यहाँ, कफज आहार विहार रहा, क्लेद की उत्पत्ति भी होती है, सप्त धातु पे भी आता है। बट जैसे ही शुक्र धातु के बाद का नरिशमेंट देखना होता है, वात की कंडीशन में ओज का भी क्षय होने लगता है। और ओज क्षय अगर होने लगता है तो इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं, इट इज अ असाध्य टाइप ऑफ व्याधि। इसीलिए मधुमेह को असाध्य टाइप की बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ओज का भी निष्कर्षण हो रहा है। नाउ द संप्राप्ति, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विद द मॉडर्न पर्सपेक्ट। यहाँ पे मॉडर्न पर्सपेक्ट से अगर हमको देखना है तो क्या है, पहला तो निदान का समुच्चय। निदान क्या था हमारा, पॉजिटिव फैक्टर्स, 2000 आस सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम उदक अनुप्रस्य प्यासी। अगर हमने इन सारी लाइफस्टाइल को नहीं ध्यान, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं ध्यान रखा, उस पर्सन ने मोर कफज आहार विहार का इंटेक किया तो क्या हो गया, उसका कफ एंड पित्त प्रकोपित हो गया। एंड कफ जब इम्बैलेंस्ड हुआ तो क्या किया, वो कफ मेद एंड मांस का ड्यू टू सेम प्रॉपर्टी के साथ मिलता है, बॉडी के चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंड अग्निमंद की कंडीशन आती है। अग्निमंद होने से देन क्या होगा, उसका धीरे धीरे धातु उसका पोषण नहीं होगा एंड यही फिर हमारे यूरिन में एक्सपेल होने लगता है। अब ये तो पहला कंडीशन हुआ जहां पे अग्निमंद हुई। अब अग्निमंद होगा तो पहले इनिशियली कफ का प्रकोप हुआ है, तो नो डाउट कफ क्या करता है, हमारे वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनिशियली पेशेंट्स में क्या दिखता है, स्लाइटली वेट गेन होता है, बट थकान एज इट इज रहती है। उनमें पेशेंट कंप्लेन भी करता है कि थोड़ा प्यास लग रहा है, देयर विल बी इंक्रीज थर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली क्या होता है, अब स्थान में समुच्चयन हो रहा है, अब वो टिश्यूज लेवल पे इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्युमुलेटेड कफ होता है मेद के साथ इन्वॉल्व तो हुआ, चैनल्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पे अमंग द 13 स्रोतस, मेदो वह स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू करता है। अब मेदो वह स्रोतस के कारण इसमें मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहाँ पे जब मेटाबॉलिज्म कम होती है तो यहाँ क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, देयर विल बी द वेट लॉस कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज, थर्स्ट इंक्रीज हो जाता है, थकान रहता है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट ऑल्सो, बिकॉज अग्निमंद कंडीशन आ चुकी है, मेटाबॉलिज्म की रेट में कम हो चुकी है। नाउ द थर्ड स्टेज जब संप्राप्ति और क्लियरली हम देखते हैं, दिस इज द व्यक्त स्टेज। मीन्स इनिशियली बॉडी ने जब मेद के साथ मिक्स करना शुरू किया था, कफा की बढ़ोतरी हुई थी, उस टाइम में तो हमको ओबेसिटी दिखी थी, थर्स्ट दिखा थोड़ा थोड़ा। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, स्थान समुच्चय ने जब आसपास के टिश्यूज में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो पेशेंट में वीकनेस भी दिखी, यूरिनेशन का अमाउंट भी दिखा एंड साथ साथ वेट लॉस भी हुआ। हमने वहां पे भी अब ट्रीट नहीं किया है, देन द थर्ड स्टेज इज व्यक्त स्टेज, जहां पे डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड ये क्या होता है, अब यहाँ पे कफ के साथ साथ वात का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब जब वात का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वात नो डाउट ओज को भी लेके एक्सपेल आउट कर रहा है। यहाँ पे यूरिन नो डाउट इट मे बी मधुमेह ऑफिशियली जो प्रेजेंट होने लगता है। तो यहाँ क्लियरली जो सिम्टम दिखते हैं, एक्सेसिव यूरिन दिखता है, एक्सेसिव थर्स्ट दिखता है विथ वेट लॉस along with weakness, sweet smell and sweet in urine, slow wound healing and recurrent infections। ये सारे सिम्टम्स हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में मधुमेह के लिए दिया है, एंड जिसको हम मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर कोरिलेट करना चाहें तो ये चीज किसके बिहाफ पे होगी, सिम्टम बिहाफ पे, जो कि लिखा भी हुआ है कि सिम्टम्स किस किस
कंडीशन में प्रधान स्टेज में क्या होता है, टिश्यू लेवल पे क्या होता है, एंड द कॉम्प्लिकेशन स्टेज, एंड द एंड अप इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिम्टम्स। अगर हम इसके प्रमेह को, एक्चुअली प्रमेह की उपद्रवता भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर हमने इस स्टेज में भी ट्रीट नहीं किया, देन उपद्रवाज आर पांडु, मांसक्षया, कुष्ठ एंड शोष, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। सो मेरे आज के स्लॉट में इतने ही टॉपिक्स थे जो कि मुझे कवर करना था। टॉपिक्स जो देखा था, इंट्रोडक्शन देखा, भेद, देन दोषाज इन्वॉल्वमेंट, आमा इन्वॉल्वमेंट एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर। अभी क्वेश्चनिंग के लिए किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।